So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Manpreet Singh and you are watching Physics World. So, now we are doing calculus. Yes, this is the lecture 3 of functions. Yes, functions, lecture number 3, calculus ka unit number 1. Yes, functions. So, in functions, we have discussed about what are functions, what is domain, what is the range, and square functions, square root functions. We all discuss that. Yes, सब कुछ हमने discuss कर लिया. So in today's lecture we will be discussing modulus function that is represented by this dot means कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी expression हो सकता है, but the expression should be in mods. This is called mods. Yes, mods. नो नॉट मोड्स नहीं है, मॉड्स, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट. सो व्हाट इज मॉडुलस फंक्शन? बिफोर गोइंग इनटू द डेफिनेशन एक लेमैन रख देते हैं इस पर, ठीक है, लेमैन तरीके से समझते हैं मॉडुलस फंक्शन करता क्या है. ठीक है, मॉडुलस फंक्शन करता क्या है? मॉडुलस फंक्शन चाहता है दुनिया में पॉजिटिविटी रहे. व्हाट मॉडुलस फंक्शन वांट्स इज दैट there is peace all around the world. And how peace is generated? When there is positivity. So modulus function always gives out positivity. And what is positivity? In mathematics, that is plus, positive number. Yes, positive real number. Positive real number. Positive R means positive real number. Yes. So modulus function always gives out. Gives out means that is the output. Always gives out, that is the output. Always positivity, that is positive real number. Modulus function हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर ही देता है. सो देयर इज नथिंग मेंशन अबाउट द इनपुट. इनपुट के बारे में तो बोला ही नहीं. सो इनपुट क्या होगा? सो इनपुट कैन बी एनी रियल नंबर. सी, all the functions you are dealing with are real to real functions such that real to real means इनपुट भी रियल होगा, आउटपुट भी रियल होगा. ठीक है, पहले तो ये समझ. सो दैट इज, सो नाउ आउटपुट इज पॉजिटिव ऑलवेज. सो इनपुट कैन बी एनीथिंग. यस, इनपुट के बारे में बोला नहीं. देयर इज नो स्पेसिफिकेशन अबाउट द इनपुट. सो इनपुट कैन बी एनी रियल नंबर बिकॉज इट इज अ रियल टू रियल फंक्शन ना. सो इनपुट कैन बी एनी रियल नंबर. यस, लिख देता हूं मैं, इनपुट any real number. And if you remember, what is the input called in mathematical language? Yes, mathematical language में input को क्या कहते हैं? Domain. That is the domain of the function. And what is the output? Output is R positive. That is the range. So the range of the function can be written as 0 to infinity. 0 closed, infinity open. Yes, so 0 to infinity is its range. And input can be any real number. That is, it can be written as, if you want to write it, infinity to infinity plus minus. Yes, so minus infinity to plus infinity open bracket. So that is the domain and range of modulus function. And now you got the definition also, that modulus function is a type of function in which the domain can be anything, can be any real number, but the range is always a positive number. Yes, positive real number. Yes, so एक क्वेश्चन करता हूँ आपसे. यस, क्वेश्चन क्या है? मॉडुलस ऑफ
-5. देखिए, what is the modulus of -5? You can say 5. What is the modulus of 5? What is? It is also 5. What is the modulus of -3? It is 3. Yes, it is 3. So you understand the nature of modulus function, that whichever quantity you put, you get the positive of that, you get the positive of that. So this is clear to us कि यहाँ क्या हो रहा है, ये हमें क्लियर है बिल्कुल. बट यहाँ जो है ये -5 का +5 करने के लिए बीच में क्या हो रहा है, समझिए बात को. -5 का +5 करने में कुछ बीच में कुछ तो, सॉरी, some technical glitches always happen with me. Yes, so now it's fine. So what is happening in between -5 modulus to +5? So the thing is minus of x, now x can be any real number, minus of x modulus is minus times minus x, and that is plus x. अब ये क्या होगा, हमने तो कहा था माइनस नहीं आता, यहाँ तो दो माइनस आ गए. सी, ध्यान से देखो इसको, ध्यान से. माइनस एक्स मॉडुलस, वी हैव टू मेक इट प्लस एक्स. हाउ टू मेक इट प्लस एक्स? बाय मल्टीप्लाइंग इट विद माइनस ऑफ 1. If simplifying the things, if you have any number, let's say -100, how you can make it +100? By multiplying it by -1. Simply. ये चमकता है, ये क्लियर होता है कि नहीं होता, पहले तो ये बताओ. स्टार मार्क कर लो इसको, नोट्स में इसको लिख लेना. मीनिंग ऑफ मॉडुलस. यस, मीनिंग ऑफ मॉडुलस. सो मॉडुलस क्या करता है, -1 से मल्टीप्लाई कर देता है. यस, जब माइनस क्वांटिटी होती है ना, सो इट मल्टीप्लाइज इट विद -1 सो दैट इट बिकम्स पॉजिटिव. यस, अब इसका एक और निचोड़ लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा. कैसे? देखो, प्लस वाले में क्या हो रहा है, प्लस को तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, लेकिन उसमें भी कुछ हो रहा है. क्या हो रहा है देखो, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, प्लस +5. यस, +5 प्लस पॉजिटिव एक बार बोल दिया मैं भी ना. तो +5 इज इक्वल्स टू +1 टाइम्स +5, दैट इज 5. कुछ सिमिलैरिटी दिखी इन दोनों में? जरा मुझे बताना, कुछ सिमिलैरिटी दिखी? ये मॉडुलस है, 1 नहीं है. मॉडुलस है, ये मॉडुलस है, ये भी मॉड है, ये +1 अंदर है, सॉरी +5 अंदर है. ठीक है, ये मॉडुलस है, मॉडुलस. फिर ये +1 से मल्टीप्लाई करा किसको, +5 अंदर वाली चीज़ को, क्या हो गया 5 यहाँ. सो कुछ सिमिलैरिटी दिखी आपको? सिमिलैरिटी ये है, अगर आपको दिखी हो ध्यान से, कि अगर अंदर जो भी साइन है, जो भी प्लस माइनस 2 ही साइन हो सकते हैं. सो जो भी अंदर साइन है, बट विच एवर इज द साइन, we multiply the modulus function, multiplies it with 1, and the sign is decided by the number inside the mod. लिखो इसको, लिखो, जो बोला है वो लिखो, जो बोला है पीछे जाओ, लिखो इसको क्या बोला क्या है ये. दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, नोबडी टेल्स यू. ठीक है, दिस इज माई ऑब्जर्वेशन कि जो भी अंदर वाला साइन होता है ना मॉड के, मॉड उसको उसी से +1 से मल्टीप्लाई करता है. +1 -1 मतलब फिर से जो भी अंदर साइन होगा मॉडुलस के अंदर, जो भी चीज़ होगी उसका जो भी साइन होगा, मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस मल्टीप्लाइज बाय 1 एंड द साइन इज द सेम एज द नंबर हैव इनसाइड द मॉडुलस. दिख रहा होगा आपको, अब तो समझ में आ रहा होगा. भले मेरी भाषा ना समझ में आ रही हो, फीलिंग तो आ रही होगी कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं. समझ में आ रहा है ना? दैट इज द मॉडुलस फंक्शन, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस मॉडुलस फंक्शन. ठीक है, ये करता क्या है, ये उसी के
साइन के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर देता है, ताकि 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 क्योंकि जब भी दो लाइक साइंस मल्टीप्लाई होते हैं, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सिक्स्थ क्लास, वेन एवर टू लाइक क्या बोलना चाह रहा था मैं, जब भी टू लाइक जो प्लस माइनस मैं भूल गया, जो भी समझ रहे होगे, जब भी टू लाइक ये प्लस या माइनस कोई एक मल्टीप्लाई होता है आपस में, तो वो हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव देते हैं। जब अनलाइक चीज़ें होती हैं, एक प्लस हो एक माइनस हो, या एक माइनस हो एक प्लस हो, तब वो हमेशा नेगेटिव देता है। यस, समझ में आ रहा है? माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। सो वी वॉन्ट only plus, so we multiply plus with plus or minus with minus, not minus with plus. That's the basic concept of this modulus function, and this is very important function though, very important function used in throughout the calculus, throughout continuity, differentiability, limits, all सब जगह यूज होता है ये, ठीक है। एंड in functions chapter of class 11th it is used in linear inequalities also. This function is used, so I'm not going in that because our main topic is, our main subject is calculus, so we are dealing with calculus like चीज़ है, ठीक है। कैलकुलस की तरफ हम बढ़ेंगे, इसलिए मैंने आपको लीनियर इनइक्वालिटी वाला एस्पेक्ट नहीं बताऊंगा, ठीक है, सिर्फ फीलिंग दे रहा हूँ मैं। अब चलते हैं इसकी ग्राफ की तरफ, बिकॉज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट लेक्चर दैट कैलकुलस कैन बी थॉट एज मैथमेटिकल और ग्राफिकल। सो एवरीथिंग यू स्टडी इन कैलकुलस हैव टू बी डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स, एक तो मैथमेटिकल, एक ग्राफिकल। सो बढ़ते हैं ग्राफिकल चीज़ के ऊपर, फिर हम सेशन को बंद करेंगे, ठीक है। सो how to draw how to draw the graph for modulus function. Yes, how to draw the graph of modulus function. So first of all we have to write the equation for modulus function. Yes, so what is the mathematical equation of modulus function? Now write with me, ठीक है। पीछे जो लिख दिया ठीक है, लिख दिया, अब तो लिखना ही है, ठीक है। अगर अभी भी कोई सोया हुआ है तो जाग जाओ। सो अब तो जो लिख रहा हूँ वो लिखना ही है। डोमेन रेंज लिख ली, फंक्शन की डेफिनेशन लिख ली, अब ये चीज़ तो लिखो ही लिखो, ठीक। सो मैथमेटिकली, क्योंकि हमें मैथमेटिकल डेफिनेशन चाहिए ग्राफिकल के लिए, सो मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं मॉडुलस फंक्शन को, ज़रा देखिए। एफ ऑफ एक्स मीन्स एफ ऑफ एक्स कैन बी एनी फंक्शन, यस, एंड दैट इज द मॉडुलस फंक्शन। सो एफ ऑफ एक्स, that is modulus x, ठीक है, that is modulus x can be said also, yes, modulus x y f of x, सब एक बात है। ये RHS में होंगे, LHS में आपकी दूसरी वैल्यू आएगी। समझ पा रहे हो ना? देखो फंक्शंस को समझना सीखो, कैसे दिखता है फंक्शन, ठीक है, तभी आप कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट्स लगा पाओगे, ठीक है। फंक्शंस को लिखना सीखो, कैसे लिखते हैं। मॉड एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब ये एक हमने ओपन ब्रैकेट यहीं लगाई है, करली ब्रैकेट है, यहाँ नहीं लगेगी, ठीक है, समझो अभी इसको। सो मॉडुलस ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज थ्री थिंग्स, ठीक है, तीन तरीक़ों से लिखा जा सकता है ये। कैसे? या तो इसकी वैल्यू आएगी -x, ठीक है, कब? सच दैट, दिस इज द साइन फॉर सच दैट, यस, सच दैट x इज लेस देन 0, ठीक है। इसकी वैल्यू आ सकती है 0 सच दैट x इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू आ सकती है पॉजिटिव x सच दैट x इज ग्रेटर देन 0। अगर आपको ये चीज़ चमकती है, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्योंकि ये तो बिल्कुल सिंपलेस्ट फंक्शन है। मैं तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 3x + 2y + 3z मॉडुलस, उसका क्या करोगे? सो उसका अलग तरीके का बनेगा, बट दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ राइटिंग मॉडुलस फंक्शन। दिस इज ऑल्सो द मैथमेटिकल डेफिनेशन, ठीक है। मैथमेटिकल डेफिनेशन में तो हम बिल्कुल सिंपल वाली चीज़ लिखते हैं ना, क्योंकि इसी से हमें समझ में आ जाएगा, इसी से बाकी सारे डिराइव हो जाएंगे। अब इससे कैसे होंगे देखो। मॉडुलस के अंदर जो भी है, जो भी ये चीज़, जो भी चीज़ है, मसाला बोल दो इसको, जो बोलना है जो बोल दो, कढ़ाई पनीर,
आलू टिक्का जो बोलना है, नॉन वेज हो तो बोल दो, फिश करी या जो भी बोलना है बोलो। सो मॉडुलस के अंदर जो भी चीज़ है अगर वो ज़ीरो से छोटी आती है सो उसके साथ हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि पिछले बोर्ड पे हमने किया था, -5 था, देयर इज -5, so -5 is less than 0, multiply it with -1, -5 into -1 plus का 5 आ जाएगा। if the given quantity becomes 0 under the modulus, ठीक है, अंडर द 5 - 5 है मॉडुलस के अंदर, 0 आ जाएगा। सो 0 का मॉडुलस भी 0 ही होता है। इफ देयर इज the quantity inside the modulus is greater than 0, then put क्या लिख ही दो, जैसा लिखा है वैसे लिख दो। 3x + 2y है, ये इसकी वैल्यू 2 आ रही है लेट्स से, सो 3x + 2y ही रहेगा ये। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें कैसे मैं बोल रहा हूँ। इसको जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस ऑन दिस मॉडुलस फंक्शन, it will be crystal clear to you. I am not solving any question there because this is not the topic for us. Yes, this is not the topic for us. Our topics are starting from limits. Yes, so from limits I am solving questions. I will start solving questions, and there this function is also very widely used. Yes, so now I hope this is clear how to draw this, sorry, how to write the मॉडुलस फंक्शन। एक और बार मैं लिख देता हूँ एक चीज़, ठीक है, एनीथिंग, ठीक है, मॉडुलस ऑफ एनीथिंग, क्योंकि ये एक्स ना बच्चों को समझ में आता नहीं है। एनीथिंग का मतलब एक्स ही होता है वैसे बेसिकली। मॉडुलस ऑफ एनीथिंग क्या लिखेंगे हम, इफ एनीथिंग इज लेस देन 0, इफ एनीथिंग इज लेस देन 0, जो एनीथिंग है वो लेस देन 0 है, एनी लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर लेस देन 0 है तो मल्टीप्लाई इट विद -1। इफ इक्वल टू 0 है तो बस हो गया काम, फिर तो 0। इफ ग्रेटर देन 0 है तो बस जो है वही लिख दो। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? समझ में आ जाएगा, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसका अच्छी तरीके से। उसका ग्राफ भी बड़ा अच्छा होता है, उसका मैं डिफ्रेंशिएशन से भी एक चीज़ बताऊँगा उसमें, जो कि आगे आपकी बहुत यूज़ में आएगी। ठीक है, कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, डिफरेंशिएबल ग्राफ, सो दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो हम बनाते हैं वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। बिल्कुल सिंपल तरीके से ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाएंगे, जो हमें पता है ये वाली चीज़ मेन तो ये एनीथिंग वाली तो बस खेल है। सो ये मेन है, इसको तो कॉपी पेस्ट कर लो। सो इससे ही हम अपना ग्राफ बना देंगे, चिंता मत करो, इसी से अपना ग्राफ बन जाएगा। सो इधर हम लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, इधर भी ले लो 1 2 3 4 5, ये 0 आ गया, ये आ गया -1 -2 -3 -4 -5, दिस इज -1 -2 -3 -4 -5 जो ये है। ठीक है, चलो नाउ दिमाग में क्या चीज़ रखनी है कि y दैट इज द डोमेन, यहाँ लिखता हूँ मैं, y that is the domain, so that is the range, sorry, can't be equal to negative but x can be equal to positive और नेगेटिव, दोनों चीज़ें हो सकता है। x यानी कि डोमेन आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेंज की कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगी, मतलब y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगी। इसका मतलब सीधा सा ये है कि इधर ग्राफ आपका नहीं बनेगा किसी भी हालत में, या इस x एक्सिस के नीचे आपका ग्राफ नहीं जाना चाहिए, तो इसको तो भूल ही जाओ, इस पूरे को भूल जाओ, सिर्फ ऊपर वाली चीज़ को देखो। फिर से समझा रहा हूँ, y आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? डेफिनेशन है भाई, y नेगेटिव नहीं हो सकता। सो इसको तो भूल ही जाओ, ऊपर वाली चीज़ को देखो। अब देखो 1 का क्या होता है मॉडुलस, 1 का मॉडुलस, या पहले 0 का आ लो। 0 क्या क्या होता है? 0 ही होता है। 1 का क्या होता है? 1 ही होता है। 2 ही होगा। 3 ही होगा। समझ पा रहे हो ना? 3 का मॉडुलस 3 होगा, 4 का 4 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, 4 का 4 ही होगा, 5 का 5 ही होगा। अब 0 का तो 0 हो गया। -1 का क्या होगा? -1 का मॉडुलस -1 से इंटू हो जाएगा, -1 इंटू -1 +1, ये आ गया। -2 का मॉडुलस +2, -3 का +3, -4 का +4। दिस इज द ग्राफ। ज्वाइन कर दो, ग्राफ बन गया, बस खत्म होकर। वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफ दो,
बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ग्राफ है ये, अगर मैं आपको बोलूँ डिफ्रेंसिएशन के एस्पेक्ट से बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट्स, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आर दिस, यस, एंड दिस इज द ग्राफ। ये ग्राफ आपका बन गया, ठीक है। फिर से समझा रहा हूँ, वाई नेगेटिव नहीं हो सकता, नीचे कोई वैल्यू नहीं जाएगी, यहाँ नेगेटिव है, वाई सारे नेगेटिव नहीं हो सकते। एक्स कैन बी पॉजिटिव, एक्स कैन बी नेगेटिव, वाई ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। आप समझ गया। अब देखो इस ग्राफ का थोड़ा सा कैलकुलस वाला, अब फंक्शंस खत्म हो गए, ठीक है। फंक्शंस खत्म हो गए मतलब चैप्टर खत्म नहीं हुआ, मॉडुलस फंक्शन के बारे में जितनी फंक्शन रिलेटेड बात करनी थी वो होगी है। अब हम थोड़ा सा कैलकुलस वाला पार्ट की बात करते हैं। देखो ये जो फंक्शन है ना, मैं आपको समझाऊंगा कैसे डेरिवेशन वगैरह और चीज़ें करके समझाऊंगा अभी आगे लेक्चर्स में, बट अभी फिलहाल के लिए फैक्ट की तरह याद रखिए आप कि ये जो फंक्शन है, ये जो ग्राफ है, ये कंटिन्यूअस है। व्हाट इज कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस इज कि दिस ग्राफ इज नॉट ब्रेकिंग एट एनी पॉइंट। कहीं ब्रेक हो रहा है क्या? ये कहीं ब्रेक हो रहा है? नहीं हो रहा। ब्रेक होने का मतलब कहीं ऐसे ओपन सर्कल आ गया, ऐसा कोई ओपन सर्कल तो नहीं आया ना ग्राफ में, ऐसा कोई ओपन सर्कल तो नहीं आया, कोई स्पेस तो खाली नहीं छूटा, कंटिन्यूअस है। जो आपका जिंट फंक्शन है, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्टेप फंक्शन, वो आपका डिसकंटिन्यूअस है। या जो आपका सिग्नम फंक्शन है दैट इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस, बट दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट इन दिस फंक्शन, लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लिमिट क्या होता है सब कुछ बताऊंगा, वही फैक्ट की तौर पे याद रखो, ठीक है। रिमेंबर इट एज फैक्ट्स, ये आगे काम आएंगे ये। सो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस ग्राफ है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक। ये ग्राफ डिफरेंशिएबल, आवाज बंद नहीं हुई, चिंता मत करो, नहीं है, मैं सस्पेंस बढ़ा रहा था। डिफरेंशिएबल, अगर नहीं नजर आ रही है देख लो, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक। डिफरेंशिएबल नहीं है। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डिफरेंशिएबिलिटी? मैथमेटिकल टर्म्स में हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन ग्राफिकल टर्म्स में क्या होना चाहिए? स्मूथ कर्व होना चाहिए, स्मूथ, स्मूथ, ये दिस इज अ स्मूथ कर्व, स्मूथ कर्व होना चाहिए। ये कोनिकल कर्व, ऐसा कर्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। टिप वाला कर्व नहीं होना चाहिए, स्मूथ कर्व होना चाहिए, ठीक। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।